discussed regarding the increasing opportunity cost and the associated. Oh, wait, I'm getting voice from here also. Yeah. So yesterday we discussed regarding the PPF in the case of increasing opportunity cost, and we discussed two nation case, that is nation 1 and nation 2. Increasing opportunity cost PPF में क्या मतलब होता है? We discussed regarding the slope of PPF. Today we'll discuss what are the reasons for increasing opportunity cost. मैंने आप लोगों को reasons लिखवाए थे, डिस्कस किए थे constant cost conditions के अंदर भी. Anybody remembers? एक दो रीजन हमने डिस्कस किए थे कि कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस हमारा किस केस में अराइज होता है. व्हाट आर द कंडीशंस जब हमारा कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस होएगा? एनीबॉडी रिमेंबर्स दोस रीजंस? आई थिंक वी डिस्कस टू रीजंस. याद है किसी को? प्रॉपर लिखवाया है मैंने. Perfect substitutes, yes. Perfect substitutes, or when both the factors of production are equally efficient in producing that particular output. So under those circumstances, we will have constant cost conditions. Can anybody suggest what can be the reasons for increasing opportunity cost, which are leading to different production frontiers? What can be the reasons? Now that we know कि constant cost हमारा perfect substitutes के केस में arise होता है, that is when the factors of production are perfect substitutes. Second, जब वो equally efficient होते हैं उस particular output के लिए, production के लिए, तो increasing opportunity cost में क्या conditions होनी चाहिए? You can unmute and speak if you feel that it's too tough to write down. You can unmute and speak. I'm waiting. We are discussing reasons for increasing opportunity costs. Nobody? Ashu, Ishita, Bidisha, what can be the reasons for increasing opportunity cost? Mudit, Ravi, आप लोग तो आंसर करने वाले बच्चे हो. Okay. Any two normal goods लेस एफिशिएंट इन वन. या सो अगर हम बोल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, अगर हमने कांस्टेंट कॉस्ट की ये बोली है कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब वो होमोजीनियस है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रीजन आ जाएगा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो क्या होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट होमोजीनियस. Not homogeneous, they are not perfect substitutes, they are not identical, they are not in terms, they are not of same quality when we talk about the production of that particular output. So Kunal is saying more production of one. Kunal, I think you want to say that a factor of production is more efficient in the production of that particular good as compared to the other good. I think आप ये बोलना चाह रहे हो, which is absolutely right. Bitisha, I'm unable to understand any two normal goods. आप क्या बोल रहे हो, मुझे वो समझ में नहीं आया है. So the first reason for increasing opportunity cost is that factors of production are not homogeneous. That is, they are not identical or they are not of same quality. And second reason, as Ashu and Kunal said, that factors of production are not used in some fixed proportion or intensity in the production of all the commodities. सो इन दो रीजंस की वजह से हमारा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है. इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो डेफिनेशन कल लिखवाया था वही डेफिनेशन मैं अभी दोबारा नीचे लिख रही हूँ, क्योंकि ये दो रीजंस हमें क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जब भी हमारा कोई नेशन एक कमोडिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करता जाएगा तो उसके अंदर जो हम रिसोर्सेज इनपुट करेंगे वो लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज इनपुट कर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम दूसरे कमोडिटी से वो वाले रिसोर्सेज को विड्रॉ करेंगे जो हमारे इस पर्टिकुलर. गाइस प्लीज होल्ड ऑन. हेलो.
Sorry guys, my grandfather is not doing well, so there is some emergency there. Anyways, so yeah, so because of these two reasons, as the nation produces more of a particular commodity, it has to take out the resources. जो भी हम निकालेंगे वो less and less efficient होती जाएगी. This is what I'm writing over here. I hope these two reasons are clear. So as the nation produces more of a commodity, it must utilize more resources that becomes progressively less efficient or less suited for the production of that commodity. Guys, I want a quick response from everybody कि आपको ये लाइन समझ आई है कि हमें क्यों वो वाली ज्यादा रिसोर्सेज यूज करनी पड़ेंगी जो प्रोग्रेसिवली लेस एफिशिएंट होंगी इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. क्या आपको ये लाइन समझ आई है? I want response from everybody, guys. Today it's a good number in the class. Please respond. और इस ये हमारा क्यों कॉन्सिक्वेंस है ऊपर वाले दो रीजंस की वजह से. एंड दैट इज व्हाई वी से thus the nation must give up. Thus the nation must give up more and more of the second commodity. Okay, भव्या. ऑफ द सेकेंड कमोडिटी मतलब जिसमें उसका कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं है, जहां से वो विड्रॉ कर रहे हैं उसको हमें ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू रिलीज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी. So this is the reason why there is increasing opportunity cost. Next, I need to mention before moving on to the CIC, that is community indifference curve. I need to mention the PPF of two nations. They are different. क्योंकि अच्छा आप एक बार ये लिख लो, उल्टा नहीं बोला. मैंने क्या बोला है? Thus the nation must give up more and more of the second commodity to release just enough resources to produce each additional unit of the first commodity. आशु, इसमें आपको क्या उल्टा लगा? एक बार बताना प्लीज. मैम सेकंड गुड का आपने बोलना, जो सेकंड गुड है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, कम एफिशिएंट होगा उससे निकालेंगे. जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उससे निकालेंगे ना. जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उससे निकालेंगे तब तो हम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है, ये कम एफिशिएंट है, इसलिए अब ज्यादा लग रहा है. देखो हमने यहाँ पे क्या बोला है, नेशन मस्ट गिव अप मोर एंड मोर ऑफ द सेकेंड कमोडिटी. सी मैं आपको एक बार ये सब लोग लिख लो, मैं आपको एक एग्जांपल देके आशु क्लियर करूंगी, ठीक है? ओके. एक बार just everybody just write down. I'll just give you an example, a random example, taking into account proper quantities. जैसे हम समोसा वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं ना, वैसे एक एग्जांपल लेके I'll just clarify on this. Just let me know when you guys are done. Guys, please let me know when you are done writing this. Okay. Okay, राहुल. मैं रब कर रही हूँ फिर ये आई एम रबिंग दिस ब्लू पोर्शन. इस ये जो मैंने रेड में लिखा है इसी के ऊपर मैं नहीं, मैं ये ब्लैक वाला पोर्शन रब कर रही हूँ. मे बी आई कैन यूज दिस ब्लू पोर्शन. आई जस्ट रब दिस. ओके,
So suppose this is a country, say this country 1, and it is producing two goods, good 1 and good 2. ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सपोज हम बोल रहे हैं कि गुड 1 प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को जो एफिशिएंट लेबर है, जो पर्टिकुलरली गुड 2 के लिए ही एफिशिएंट है, क्योंकि हमने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होमोजीनियस नहीं है, तो अभी हम बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल बेस्ट सूटेबल लेबर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड 1, वो हमारा सपोज 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लगता है. अभी सिर्फ मैं आपको एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से समझा रही हूँ. सपोज 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लगता है 1 यूनिट ऑफ गुड 1 प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. और जो गुड 2 है, गुड 2 के अंदर जो लेबर गुड 2 के लिए एफिशिएंट है, उसमें सपोज हम बोल रहे हैं कि वहां पे भी हम लोगों के से अभी कांस्टेंट रख लो कि वहां पे भी हमारा 2 लेबर लगता है 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए. बट ये वाला जो लेबर है, गुड 2 वाला जो लेबर है, वो गुड 2 के लिए एफिशिएंट है, वो उतना ही एफिशिएंट गुड 1 के लिए नहीं होगा. तो अगर हम लोगों को गुड 1 की 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बाय अजम्पशन आई एम सेइंग कि अगर हम गुड 2 से विड्रॉ करते हैं 1 एक्स्ट्रा यूनिट गुड 1 की प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें 3 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ लेबर लगेंगे. इसका मतलब या डबल ले लो, इजी हो जाएगा. 4 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ लेबर लगेगा एक प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अब ये लेबर हम गुड 2 से विड्रॉ कर रहे हैं. तो जो ये लेबर पहले गुड, इसका मतलब कि हम अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड 1 की, और यहां से हमने 4 लेबर्स को विड्रॉ किया है, तो यहां से हमारा 2 यूनिट का रिडक्शन होएगा. आशु, इतना समझ आया? यस मैम. तो अब देखो, इसका मतलब अब एक बार रेड वाली लाइन दोबारा पढ़ेंगे. Thus the nation must give up more and more of second commodity to release just enough resources to produce each additional unit of the first commodity. अब अभी जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया उसमें कि मैंने क्या बोला कि एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए गुड 1 की हमें 4 यूनिट्स ऑफ लेबर विड्रॉ करनी पड़ेगी गुड 2 से, क्योंकि अब गुड 2 और उसकी वजह से गुड 2 का 1 यूनिट रिडक्शन नहीं होगा, 2 यूनिट रिडक्शन होगा. उसी तरीके से अब हो सकता है कि ये जो हमने लेबर यहां से विड्रॉ किए हैं इनिशियली 4 लेबर, ये थोड़े से सपोज नेक्स्ट लेते हैं कि हमें 1 एक्स्ट्रा यूनिट और प्रोड्यूस करनी है. ठीक है. तो अब हमें फिर और लेबर वहां से निकालने पड़ेंगे, और हो सकता है कि वो जो दूसरे लेबर है वो ये जो हमने पहले 4 लेबर विड्रॉ किए थे, ये इनसे भी कम एफिशिएंट हो गुड 1 की प्रोडक्शन के लिए. तो अब हमें 4 लेबर की बजाय 6 लेबर विड्रॉ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 6 लेबर हम लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा सिर्फ 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए. इसका मतलब फर्दर गुड 2 का 3 यूनिट्स का रिडक्शन हो जाएगा. सो now come back again to the statement and read this. The nation must give up more and more of the second commodity to release just enough resources. ये जो just enough resources है, ये फर्स्ट केस में 4 लेबर थी, जब हमने एक और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहा तो just enough resources कितनी हो गई? 6 लेबर हो गई, जिसकी वजह से now read the next line, to produce each additional unit of the first commodity. Is it clear now, Ashu? No, my doubt was like you said, second commodity is less efficient. I mean, in the example also, the second commodity or good 2 from which we are taking the production is more efficient. That as the labor is the labor when we are putting in the first commodity, it's more and more labor are required because those labor were efficient in production of good 2. So that was my doubt. I mean, this I understood. तो आप ये बोल रहे हो कि जो लेबर हमारा गुड 2 के लिए एफिशिएंट है उसको हम विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहे हो? नो मैम, मतलब वही कि मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट था, मतलब आपने वो बोला था कि वो कम एफिशिएंट है, मैं उसमें कंफ्यूज हुआ था. अच्छा, मुझे नहीं पता आप किस में कंफ्यूज हुए, पर आपको अभी क्लियर है? यस मैम, यस मैम, ठीक, क्लियर. ओके. सो नेक्स्ट देयर आर 2-3 मोर पॉइंट्स जो हमने कल पीपीएफ डिस्कस किए थे हमारे. अच्छा ठीक है, पीपीएफ का डेफिनेशन हमने आई थिंक जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था तभी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम कुछ चीजों को कांस्टेंट रखते हुए चलते हैं. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, प्लीज टेल मी, आई जस्ट my question to you is, please tell me that PPF of two nations are different due to which factors? कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं
दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर किसी भी दो कंट्री का डिफरेंट होता है. जस्ट गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ पीपीएफ दैट वी हैव डिस्कस्ड. उसमें कुछ कांस्टेंट हम लोग रख के चलते हैं, वो कांस्टेंट चेंज होएगा तो पीपीएफ चेंज हो जाएगा. यस, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. परफेक्ट. सो द फर्स्ट रीजन इज दैट ड्यू टू रिसोर्सेज को, ड्यू टू फैक्टर एंडोमेंट्स, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कितनी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, कि क्या क्वांटिटी एंड क्वालिटी एग्जिस्ट करती है किसी भी एक नेशन के अंदर. एंड नंबर 2 रीजन इज देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन. So these are the two reasons. Now see, something associated with this I want to tell you कि अभी हमारा labor laws इतना ज्यादा इन डिमांड हो गया, नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट ऑल्सो इंटरनेशनली, कि वीजा के ऊपर जो सारा हम लोगों का इशू चल रहा था विद अमेरिका, वीजा के ऊपर ये हो रहा है, जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा उनका क्या टेक रहेगा ऑन वीजा. इनिशियली हम लोगों का जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था इतना ज्यादा, तब हमारा लेबर लॉज वगैरह को लेके इतना ज्यादा वो नहीं था, वीजा एंड ऑल दीज थिंग्स नहीं था. बट अभी क्यों है? बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट नाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज लीडिंग टू द माइग्रेशन ऑफ द फैक्टर्स. एंड when the factors of production they are getting migrated, which means जो हमारा डिफरेंस होता है वेजेस में, या जो हमारा डिफरेंस होता है फैक्टर पेमेंट्स में, वो डिफरेंस रिड्यूस हो जाता है. ये स्टेटमेंट समझ में आई है? जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंट रिड्यूस हो जाता है when the factors of production are getting migrated from one place to the other place, because factors always try to migrate from a place which is having lower wages to a place which is having higher wages. एंड इसकी वजह से वहां पे जब हमारा लेबर सप्लाई इंक्रीज होएगा तो वेजेस रिड्यूस हो जाएंगे, और जहां से वो फैक्टर्स आ रहे हैं वहां पे लेबर सप्लाई रिड्यूस होएगा तो वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे. एंड दिस मूवमेंट विल टेक प्लेस टिल द टाइम in the international market the factor payments they become equal. तो अब because all these theories started coming up कि कोई भी कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस क्यों कर पाती है, क्योंकि उनके पास फैक्टर एंडोमेंट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा होती है. सो इसलिए अब जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इंस्टीट्यूशंस है, उनका ध्यान माइग्रेशन की तरफ भी जा रहा है, वीजा की तरफ भी जा रहा है. सो एनीवेज, जस्ट वांटेड टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट्स एंड द टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन in the growth of a country and thus in the welfare of the country. So as the supply availability of this factor of production और दिस टेक्नोलॉजी चेंजेस ओवर टाइम. जैसे चेंजेस मतलब अगर हम बोल रहे हैं इंप्रूवमेंट हो रहा है, सपोज या तो सप्लाई ऑफ अवेलेबिलिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी हमारा इंप्रूव कर रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड, देन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज गोइंग टू शिफ्ट आउटवर्ड. एंड किस तरीके से वो शिफ्ट होएगा, मतलब उसका स्लोप चेंज होता है, आउटवर्ड, थोड़ा आउटवर्ड बेंडिंग की तरफ शिफ्ट होता है. वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव हो रही है, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स, उनके बीच में जो हमारा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी डिग्री है कि हम लेबर और कैपिटल को कितना सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट, वो रिलेशनशिप कैसे चेंज हो रहा है. सो उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा पीपीएफ का शिफ्ट कैसा होता है. I'll just write this down. अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लो. I'll explain again. So I said as the supply or availability of factor of production or technology changes over time, a nation's production possibility frontier will shift, and the type and extent of these shifts depend on the type and extent of the changes that take place. So this was the last point that I wanted to make in the PPF. Now we'll be starting with the community indifference curve. We'll discuss regarding the properties. Indifference curve जिसको अच्छे से याद है उनको कोई ऐसा problem नहीं होने वाला है. I'll be discussing everything from the start. So guys, things are clear till here. Things are clear till here. ये last line सबको समझ आ गई है ना, shifting वाली, क्योंकि